Good morning, friends. Today we are going to learn EVS Environmental Study, open page number 94. Write today's date and day. Now, today we are going to learn chapter number 16, Festivity and Festivals. उत्सव और त्योहारों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ नोन to be a country of festivals. Each festival is special and unique and has a significant story of history behind it. Celebrating festival is one way to keep the traditional of our rich culture heritage alive. Festivals bring us together and teach us to respect each other as well. Celebrations are joyous occasions which spread the message of brotherhood and peace. We celebrate national, religious and seasonal festival with great favor. सो स्टूडेंट्स, भारत को जैसा कि आप जानते हैं एक त्योहारों का देश कहा जाता है और प्रत्येक त्यौहार एक स्पेशल होता है, यूनिक होता है और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी या उसका कुछ इतिहास होता है। जो सेलिब्रेशंस होते हैं त्योहारों के, वो पारंपरिक समृद्धता और हमारे सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग अस, और ये जो त्यौहार होते हैं वो हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाते हैं। यह खुशियों के साथ साथ हमें भाईचारे का भी एक संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं। और भारत में कई प्रकार के सेलिब्रेशन जैसे राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार, कई मौसम सीजन्स के अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, मीन्स जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड विथ नेशनल स्पिरिट. The entire national participates in various official and cultural programs. स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये क्या होते हैं? हमारे नेशनल त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इन्हें मनाया जाता है। और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से ऑफिशियल और कल्चर प्रोग्राम्स में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है इसमें इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जो हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। Independence Day is celebrated on 15th August. It was on this day that after more than 200 years of British rules, India finally won back its freedom in 1947. All schools, colleges and offices across the national hoist the national flag on rooftops and buildings. It is declared a national holiday. People only go to office and schools as to attend the flag hosting ceremony. Culture programs are organized and sweets are distributed. The Prime Minister unfurls the national flag above the Lahore Gate of the Red Fort in Delhi and then addresses the nation. It is a special moment for one and all. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 में लगभग 200 साल के बाद इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन के से वापस अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया था। और इस दिन लगभग सभी स्कूलों, कॉलेज और ऑफिस में ऊपर छत के वहाँ ऊपर या बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है और इस दिन को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। इस दिन सभी लोग स्कूल में या ऑफिस में सिर्फ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। कई सांस्कृतिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन और मिठाई बांटी जाती है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट दिल्ली में लाहौर गेट पर नेशनल फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं और अपने देश को संबोधित करते हैं। यह दिन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
दूसरा है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 is one of the most important day in Indian history. It was on this day the Constitution of India came into the force and India became a democratic republic. The country finally realized the dream of Mahatma Gandhi, the father of our nation, and the numerous freedom fighters who fought and sacrificed their lives for the independence of their country. Republic Day is celebrated with much enthusiasm all over the country. A grand parade is held in the capital. From Rajghat along Vijaypath, different regiments of the Indian Army, Navy, and Air Force, NCC cadets, and school children from various schools march past in all their finery and official decorations. They spend many days preparing for the event. The president takes the salute and awarded medals for bravery. तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश जो है इस दिन गणतंत्र हमारा लागू हुआ था और इसे हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो कई फ्रीडम फाइटर्स और जो हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ आवर नेशन कहा जाता है, इन्होंने कई फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस करके और अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों को त्याग कर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना। और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए। इस दिन बहुत बड़ी परेड जो राजघाट विजयपथ के साथ रेजिमेंट से स्टार्ट होती है और इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी कैडेट्स और स्कूल के बच्चे, विभिन्न बच्चे जो होते हैं स्कूलों के, इसमें मार्च पास्ट करते हैं। कई प्रकार से इन्हें डेकोरेशन किया जाता है ना। और इसके लिए वो बहुत दिनों से इसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सैल्यूट करते हैं, साथ ही मेडल्स जो बहादुरी के पुरस्कार लोगों को देते हैं। The parade is followed by a present of spectacular displayed from the different states of the country. Every part of the country is represented. Each display brings out the diversity and richness of the culture of the India. और इस प्रकार से परेड के बाद कई महत्वपूर्ण अलग अलग स्टेट्स के द्वारा कई झांकियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें विभिन्न स्टेट्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और एवरी पार्ट ऑफ कंट्री रिप्रेजेंट ईच डिस्प्ले ब्रिंग आउट द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ द कल्चर ऑफ द इंडिया। और यह हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धता और विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। परेड्स एंड कल्चर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल स्कूल्स एंड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सभी स्कूलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम और परेड ऑर्गेनाइज की जाती हैं, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। द पैट्रियोटिक फेवर ऑफ पीपल ऑन दिस डे ब्रिंग्स द होल कंट्री टुगेदर। दिस मेक्स द रिपब्लिक डे इज मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल नेशनल हॉलीडेज ऑफ इंडिया। जो देशभक्ति के गीत होते हैं वो गाए जाते हैं और जो सभी लोग एक साथ मिलकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन जो है नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है, जो पूरे देश में मनाया जाता है। फिर है हमारा गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1869। जो गांधी जयंती है यह 2 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है और इस दिन हमारे जो राष्ट्रीय पिता हैं महात्मा गांधी का जन्म इसी दिन 1869
69 में हुआ था। ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1948 एंड वॉज सरमाइज्ड एट द राजघाट। और 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें राजघाट में इनका समाधि बनाई गई थी। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर मिनिस्टर विजिट दिस समाधि ऑन दिस डे टू प्रे देयर होमेज। और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अन्य जो मंत्री होते हैं वो इस दिन इस समाधि पर प्रार्थना करने आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। द होल नेशन प्रे होमेज टू गांधी जी वेर एवर हिज स्टैच्यूज आर erected, where the prayers and read out from the holy books of all the religions. Gandhiji's favorite songs Raghupati Raghav and other devotional songs are sung to honor the principle to stood up for principles of non-violence and peace for which they gave up his life. It is the solemn occasion which spread the message of peace, harmony and non-violence. और इस दिन गांधी जी के जहाँ पर भी जो मूर्तियाँ होती हैं, जो स्टैच्यूज़ होते हैं, वहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो सभी धर्मों के जो होली मतलब धार्मिक बुक होती है उससे कुछ छंद और प्रेयर उनके समाधि पर की जाती है। और जो गांधी जी का सबसे फेवरेट सॉन्ग है रघुपति राघव और अन्य जो भक्ति गीत होते हैं वो उनके जो सिद्धांतों को याद करते हुए गाए जाते हैं। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो अहिंसा और शांति को बढ़ाने वाले हैं और इट इज़ सेलेमन ओकेशन, और ये जो है देश में शांति और सद्भावना तथा अहिंसा को फैलाने वाले मैसेज देते हैं। फिर हम देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट zeal in our country as we have an culture, architecture, economy. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हमारे देश में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको दर्शाने के लिए बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। हार्वेस्ट टाइम इज़ अ टाइम फॉर ग्रेट सेलिब्रेशन व्हेन वी थैंक गॉड फॉर प्रोवाइडिंग अस विथ रेन एंड सनशाइन फॉर आवर क्रॉप्स। यह हार्वेस्ट फेस्टिवल का जो समय होता है यह भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है कि उन्होंने हमें फसल के लिए जो बारिश और धूप प्रदान की है उसको धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। हार्वेस्ट टाइम इज़ अ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज द क्लाइमेटिक कंडीशन एज आर डिफरेंट। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय पर मनाया जाता है क्योंकि सभी की जो जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं हर देश की अलग होती हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। चलिए अब हम इन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में और पढ़ते हैं। पोंगल एंड मकर संक्रांति। Pongal is a 4 days long harvest festival celebrated in Tamil Nadu which coincides with the festivals Makar Sankranti celebrated throughout India as the winter harvest. Makar Sankranti usually falls on January 13th. Pongal celebration continue till the 16th. On the first day, Lord Indra, the supreme rule of clouds that give rains, in worshipped. पोंगल का जो त्यौहार होता है यह तमिलनाडु में लगभग 4 days तक सेलिब्रेट किया जाता है और इसी समय जो है मकर संक्रांति
का त्यौहार भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति आमतौर पर 13 जनवरी को आती है और पोंगल सेलिब्रेशन जो होता है वो 16 जनवरी तक चलता है। इसमें सबसे पहले दिन लॉर्ड इंद्र मीन्स बारिश के देवता इंद्र की पूजा की जाती है। ऑन द सेकेंड डे राइस इज बॉइल्ड इन मिल्क outdoors in a earthenware pot and it then symbolically offered to the sun god। जो सेकेंड डे होता है उस दिन मिट्टी के बर्तन में दूध और चावल से एक डिश बनाई जाती है और यह मुख्य रूप से सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है, उनको अर्पित की जाती है। द थर्ड डे इज नोन एज मेट्टू पोंगल। मल्टी कलर्ड बीड्स twinkling bells, shapes of corn and flower garlands are the tie around the neck of the cattle. They are offered pongal rice and worshipped. It is time for festivity for one and all। और जो थर्ड डे होता है उस दिन उसे मोट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके गले में मल्टी कलर्स मीन्स अलग अलग कलर्स की मोतियों की माला, ट्विंकल बेल्स, घंटियाँ लटकाई जाती हैं और उनके गलों में फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं और उन्हें मुख्य रूप से जो पोंगल राइस होता है उस दिन बनाया जाने वाला जो चावल होता है वो उन्हें खिलाया जाता है, ऑफ़र किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इट इज़ अ टाइम फॉर फेस्टिविटी फॉर वन एंड ऑल। यह मुख्य रूप से सभी के लिए उत्सव का दिन होता है। सेकेंड है हमारा लोहरी। लोहरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल इन पंजाब विच ऑल्सो फॉल्स इन 13th January every year। इट इज़ अ टाइम फॉर पीपल टू ऑफर थैंक्स टू गॉड फॉर हिज benevolence and pray for the bountiful harvest in the coming season। The Rabi crops are sown in October and harvested in the month of March and April। Lohri marks the rest period just before the cutting of the crops। The festival is celebrated with immense gaiety and pleasure। Bhangra and Gidda folk dance of Punjab are performed everywhere। Bonfire dancing community dinners are a common sight during the celebration। Lighting bonfire is symbol of prayer offered to Agni for bountiful crops and prosperity। The day is marked with through merry making and joy among people। लोहरी जो है सेलिब्रेशन है मुख्य रूप से पंजाब में ये सेलिब्रेट किया जाता है। 13 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है और यह समय होता है जब लोग भगवान को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में उनसे अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। यह समय होता है जब रबी फसल अक्टूबर जो रबी क्रॉप्स होती है, रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर मंथ में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल मंथ में इन्हें काटा जाता है। और इस प्रकार लोहरी जो है जनवरी में मनाया जाता है, तो ये इस समय का रेस्टिंग का पीरियड होता है ना। कटाई से पहले का फसल को काटने से पहले यह रेस्ट आराम का समय होता है, उस समय यह सेलिब्रेट किया जाता है। और पंजाब के लगभग सभी जगहों पर भांगड़ा और गिद्धा वहाँ का लोक नृत्य है जो सभी जगहों पर किया जाता है। और यहाँ पर बोनफायर मीन्स अलाव जलाए जाते हैं, डांस किया जाता है। कम्युनिटी डिनर, लोग एक दूसरे को खाने पर इनवाइट करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। इस प्रकार का सेलिब्रेशन इस समय किया जाता है।
जो प्रकाश अलाव होते हैं ये अग्नि के लिए जो फसल होती हैं उसकी समृद्धि के लिए अग्नि देवता को प्रार्थना करने का एक प्रतीक होता है और इस दिन कई प्रकार से लोग खुशियाँ मनाते हैं। फिर है बैसाखी। Baisakhi is another popular harvest festival celebrated on 13th April every year. It is a celebration of harvesting of rabi crops. It also marks the beginning of the new year. The festival is a time for thanksgiving, relaxation and feast. The fires and organizations are many cultural programs and dance are performed. Men and women buy new clothes and ज्वेलरीज। बैसाखी का जो त्यौहार है वह भी एक अन्य हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और यह सेलिब्रेशन जो है रबी की फसलों का हार्वेस्टिंग का टाइम होता है और यह समय जो होता है नए साल की शुरुआत के लिए भी मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज़ टाइम ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, विश्राम और दावतों का यह त्यौहार होता है और इस समय कई प्रकार के फायर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और मैनी कल्चर प्रोग्राम्स, कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम, डांस इस समय परफॉर्म किए जाते हैं। मैन एंड वुमेन कई प्रकार के न्यू क्लॉथ्स एंड ज्वेलरीज परचेस करते हैं। फिर आता है ओनम। ओनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड celebrated festivals of Kerala. It is a time for everyone to reap the benefit of a good harvest after a year of hard work and labor. Onam festival is celebrated in the memory of popular King Mahabali. ओनम का जो त्यौहार है यह केरल का सबसे मोस्ट पॉपुलर त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल फसल की कटाई के समय लोगों हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद लोगों के द्वारा यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम फेस्टिवल जो है लोकप्रिय राजा महाबली की याद में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हु अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ विजिट हिज सब्जेक्ट ऑन दिस डे। ऐसा उनका मानना है कि वे उस दिन विजिट के लिए इस दिन आते हैं, लोगों से देखने उन्हें आते हैं। द फेस्टिवल इज़ अ टाइम फॉर थैंक्स गिविंग। द फेमस स्नैक बोट रेस इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर टू मार्क्स द फेस्टिवल। यह समय धन्यवाद का समय होता है और धन्यवाद का फेस्टिवल होता है। इस दिन जो फेमस रेस है स्नैक बोट ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल। इट इज़ अ सीज़न ऑफ डांस, सॉन्ग्स एंड वर्शिप अमॉन्ग्स अदर फेस्टिवल्स। अन्य त्योहारों की तरह ही यह दिन भी इस दिन डांस, गाने और पूजा पाठ किया जाता है। वुमेन वेयर न्यू साड़ीज, दे ड्रेस अप देयर चिल्ड्रंस इन कलरफुल ड्रेस। ट्रेडिशनल पुक्कलम, अ फ्लावर मेड ड्रोन्स इन अ courtyard of almost every house। जो महिलाएं होती हैं इस दिन नई साड़ी पहनती हैं, अपने बच्चों को नए नए कलरफुल कपड़े पहनाती हैं और इस दिन पारंपरिक पुक्कलम फ्लावर की मैट जो होती है लगभग सभी घरों के आंगनों में बनाई जाती है। Among the various dishes cooked during the festival,
पायसम इज़ मोस्ट पॉपुलर। और इस दिन विभिन्न प्रकार के डिशेस खाना तैयार किया जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पायसम जो होता है यह फूड तैयार किया जाता है। फिर आता है बिहू। बिहू इज़ ऑब्जर्व्ड विथ इमेंशन जॉय एंड गैइटी इन द स्टेट ऑफ असम, celebrated to mark the change of season. It is celebrated thrice a year. The history of Bihu celebration can be traced to 3500 BC, when it was celebrated for around a month in the present times. It is, however, celebrated for a week. The first of the three Bihus is the celebration in the month of April, in coincidence with other harvest festivals. It is a time for rejoicing as well as praying for the bountiful harvest. The entire state of Assam is in a festival mood during this time. जो बिहू एक त्यौहार है, यह बहुत ही उत्साह के साथ असम में मनाया जाता है और यह समय होता है मौसम के परिवर्तन का। और यह सेलिब्रेशन एक साल में 3 बार किया जाता है और इसका इतिहास जो है लगभग 3500 ईसा पूर्व का माना जाता है। और यह पहले पूरा 1 महीने तक इसे सेलिब्रेट किया जाता था। अभी वर्तमान समय में यह 1 हफ्ते के लिए सेलिब्रेट होता है। जो बिहू का पहला बिहू होता है, फर्स्ट बिहू जो है अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अन्य हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। और यह समय बहुत ही हर्षोल्लास का, खुशी का समय, खुशी के साथ साथ प्रार्थनाओं का भी समय होता है। और इस समय पूरे असम में बहुत ही खुशी और उत्साह का माहौल होता है। ठीक है, तो आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।